Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. A very warm welcome to Rifa International College. My name is Rahil Ahmed, and today we are going to discuss negative messages. Remember, dear students, this is semester 3rd, Business Communication book, Business Communication 1 and semester 3rd. As we have already discussed negative messages part 1, and in which we discussed point number 1, 7.1, 7.2 and 7.3. But today we are going to discuss 7.4 and 5. 2 points we are going to discuss today. And as we have a custom that before going to explore the topic, let's see the objective first. There are two main objectives, and hopefully at the end of this video lecture, you people will be able to understand and grasp overall two objectives. The one is that apply effective techniques in refusing typical requests or claims, as well as handling customer bad news in print and online. Second one, which is a fourth objective, we already discussed sorry, that is a there is a counting mistake, and that is a fourth, and it's a fifth one. Fifth one is that describing an effective techniques for delivering negative news within an organization. So remember, dear students and listeners, today we are going again, I'm repeating it, objectives, two objectives, that is fourth and this is fifth one. Fourth one is applying effective technique in a refusing typical request or claims, as well as handling customer bad news in a print and online. And the fifth one is that describe effective technique for delivering negative news within organization. So let's see and start the topic. Refusing typical request and claim. One person, if you are representing any organization or being an employee of an organization, आपको वहाँ पर मुख्तलिफ जो रिक्वेस्ट आती हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आती हैं, मुख्तलिफ ईमेल्स आती हैं, उनको आपको उसको रिफ्यूज़ करना पड़ता है, और रिफ्यूज़ करने के मुख्तलिफ तरीके हैं. याद रखिएगा, हमने इस चैप्टर 2 सेमेस्टर 2 में 3 स्टेप राइटिंग प्रोसेस जो था उसको बड़ा डिटेल में किया हुआ है. उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं उनको हम उठा सकते हैं, उसके मुताबिक जो है हम अपना राइटिंग प्लान डेवलप कर सकते हैं. लेकिन रिमेंबर इट, दैट वाज अ लिटिल डिफरेंट, दैट वाज द टेक्निक ऑफ राइटिंग समथिंग. लेकिन यहाँ पर हम राइटिंग पर्टिकुलर ये कर रहे हैं कि हमने एक रिफ्यूजल जो है वो देना है किसी क्लेम के खिलाफ, अगेंस्ट एनी क्लेम, आप जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. सो सॉरी, if you feel that there will be some sort of a anger or a disappointment, you must use indirect strategy and following writing plan. So we have here the indirect strategy. The plan is in front of you. While using indirect strategy, one will have to use this plan. The plan is first buffer, then reason, then presenting bad news, and then closing. You remember, as I discussed in a lecture 1, that buffer is something like that you cover your bad news. It is a device that actually covers the pain or a shock. ठीक है, ये ऐसा ही है जैसे कुशन होता है. कुशन बेसिकली करता क्या है, वो आपको रिलैक्स करता है, आपको तकलीफ से बचाता है, आपको शॉक, झटका, पेन वगैरह जो है उससे बचाता है. तो दैट इज ऑल्सो द सिनोनिम ऑफ अ कुशन, अ बफर. स्टार्ट विद अ नेचुरल. सो लेट्स सी इट प्लान. इस प्लान में सबसे पहले हम जब आपने रिफ्यूजिंग टिपिकल रिक्वेस्ट करना है तो उसमें आपने सॉरी फॉर दैट जी, इसमें आपने बफर से स्टार्ट करना है. बफर मींस आपको, जैसे मैंने पहले गाइड किया, कि इस तरह की स्टेटमेंट होगी जो कवर कर रही होगी आपकी बैड न्यूज को. ठीक है, डायरेक्टली. इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी जो अपनी जो खुद ये इटसेल्फ बताती है कि इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी में आपने जो खबर है उसको स्ट्रेट अवे नहीं एक्सपोज करना, बल्कि उसको आपने
अपनी गुफ्तगू के दौरान ही जो है उसको यूजुअली तरीके से एक्सपोज करना है, ना कि उसे ब्राइटन करके एक्सपोज करना है। तो सबसे पहले बफर है स्टार्ट विद अ न्यूट्रल स्टेटमेंट ऑन विच बोथ रीडर एंड राइटर कैन एग्री, सच एज कंप्लायमेंट, appreciation, a quick review of the facts, or an apology. Try to include key idea or word that acts as a transition to the reason. याद रखने की यहाँ बात यह है कि आपने समझने की बात यह है कि ऐसे अल्फाज से आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। एप्लीकेशन भी हो सकती है, इसमें ईमेल भी हो सकता है, इसमें कोई सिंपल टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है कि स्टेटमेंट इस तरह की होती है कि जिसमें आपने जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट या न्यूट्रल स्टेटमेंट जो है वो शो करनी है, न्यूट्रल गुफ्तगू से आगाज़ करना है अपनी राइटिंग क्लेम का, रिफ्यूजल का, और उसको डायरेक्टली डिसएग्री नहीं करना, उससे ऐसी बात करनी है जिससे आपका जो कंज्यूमर है वो एग्री कर रहा हो। उसमें अपॉलॉजी हो सकती है, उसमें फैक्ट्स फाइंडिंग हो सकती है, उसमें रिव्यू आप जो है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप रीजंस देते हैं, वजूहात बयान करते हैं रिफ्यूज़ करने की। लेट्स सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल देता चलूँ, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल दी थी जो अपने ही पर्सनल एक एक्सपीरियंस को मैंने शेयर किया था आपके साथ। इसी तरह से एक और मेरा एक्सपीरियंस है जिसको आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपको रिफ्यूजल टिपिकल रिक्वेस्ट क्लेम जो है वो उसको जो है वो आपको बड़ा क्लियर कर देगा। मेरे साथ मैंने ऐसा हुआ था कि एक बैंक को अप्लाई कर दिया था एक क्रेडिट कार्ड के लिए, तो उस बैंक वाले ने फिर दोबारा मुझे एक लेटर इशू किया। लेटर में कुछ डिटेल्स थी और उसने उन्हें पता था कि मेरे पास कोई बैंक की स्टेटमेंट नहीं है जिसकी बेस पर वो मुझे क्रेडिट कार्ड इशू कर सके। लिहाजा उन्होंने वो जो लेटर था, वो जो एप्लीकेशन थी, उसमें मिडल ऑफ द फेज में जाके ये मुझसे दरियाफ्त करने की कोशिश की कि क्या आपके पास बैंक स्टेटमेंट है किसी भी बैंक की, किसी भी अकाउंट की, आपकी अपने नाम की हो लेकिन किसी भी जगह पर अकाउंट हो बैंक के अंदर। तो वो मेरे पास मौजूद नहीं थे और साथ में उन्होंने बड़ा पोलाइटली इन अ वेरी गुड वे बयान ये कर दिया कि जनाब अगर नहीं होगी तो फिर हम माजरत ख्वाह हैं, हम आपसे सॉरी अभी कर देते हैं, अभी अपोलोजाइज कर देते हैं कि हम आपको कार्ड इशू नहीं कर पाएंगे, और कोई हम आपकी जो है वो खिदमत या कोई काम अगर आ सके तो हमारे लिए ये बड़ी अच्छी बात है। तो इन दैट वे एक्चुअली दैट वाज अ गुड विल gesture from the company or a business or any bank and etc कि जिससे जो उसने बड़ा पॉजिटिवली उसको क्लोज किया, और वो एक अच्छा जो था उसका इम्पैक्ट जो कस्टमर के जो है जहन पर वो छोड़ते जाता है। ठीक है, तो इसमें रीज़न जो है वो बयान करते हैं हम। फिर जो है वो बैड न्यूज़ को एम्फसाइज, जो बैड न्यूज़ को जो है वो प्रेजेंट किया जाता है इन अ पैसिव वॉइस सेंटेंस में, एक्सेंचुएट करते हैं द पॉजिटिव और इम्प्लाई रिफ्यूजल, सजेस्ट अ कॉम्प्रोमाइज अल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट इफ पॉसिबल। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ रिफ्यूज़ की है तो उसके अल्टरनेटिव या उसके मुतबादल कोई और जो अपॉर्चुनिटी है वो उसको अवेलेबल अगर है तो वो प्रोवाइड कर दी जाए या बता दी जाए। ठीक है जी, उसके बाद क्लोजिंग करते हैं तो रीन्यू गुड फीलिंग्स विद अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया क्लोजिंग में हमेशा पॉजिटिविटी आती है, तो ये एक वन वे एक तरीका है आपको राइटिंग प्लान का फॉर रिफ्यूजिंग रिक्वेस्ट। लेट्स सी अनदर थिंग, रिफ्यूजिंग टिपिकल रिक्वेस्ट एंड क्लेम्स। अब याद रखें इसमें हमने पहले तो जनरल बात की थी, मैं फिर से बताता चलूं कि आपने रिफ्यूजिंग टिपिकल रिक्वेस्ट एंड क्लेम जब करते हैं तो टिपिकल रिक्वेस्ट एंड क्लेम में जब आप रिजेक्टिंग रिक्वेस्ट फॉर फेवर, मनी, इंफॉर्मेशन एंड एक्शन इस तरह का मामला आ जाए तो तब आपने किस तरह से रिफ्यूज़ करना है अपने रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट फॉर फेवर, फॉर मनी, फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन मे कम फ्रॉम चैरिटीज़, फ्रेंड्स, बिजनेस पार्टनर। इन लोगों से इस तरह की रिक्वेस्ट ईमेल्स या मैसेजेस आ सकते हैं आपको किन कामों के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, मनी के लिए, फेवरेटिज्म के लिए या चैरिटी वगैरह के लिए। तो इन दैट कंडीशन अ लेटर मस्ट स्टार्ट विद अ बफर। जैसे मैंने पहले आपको बताया जो राइटिंग प्लान था तकरीबन ऑलमोस्ट वही है, बफर ऑफ एक्नॉलेजिंग के, यानी कि जो भी वो अच्छा काम है या पॉजिटिव काम है तो उसको एक्नॉलेज किया जाए। इट ऑल्सो प्रेजेस द गुड वर्क। इन अ सेकेंड पैराग्राफ द राइटर एक्सप्लेन्स
वाई द कंपनी कैन नॉट डोनेट, यानी कि अगर आप उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि कंपनी जो है वो आपके साथ आपको रिफंड या मनी वगैरह जो है वो एड नहीं दे सकती, तो वो उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दे। समटाइम रिफ्यूजल में नॉट फुली एक्सप्लेन, कई दफ़ा ऐसा होता है कि इस तरह के रिफ्यूजल को फुली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाता। डीलिंग विद डिसअपॉइंटिंग कस्टमर इन प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया के अंदर जब हम एक डिसअपॉइंटेड, एक मायूस ऐसा कस्टमर जो आपकी पॉलिसी या आपके किसी प्रोडक्ट से ना खुश होता है, तो उसको जो है उसके साथ किस तरह से डील करना, उसको किस तरह से आपने ईमेल जो रिफ्यूज़ल या उसको कम्प्लीमेंट्री जो लेटर है वो किस तरह से प्रोवाइड करना है, वो खासा इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ काफ़ी चीज़ें जो है वो नोट करने के काबिल हैं। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे हम कि बिजनेस ऑफन रिस्पॉन्ड टू डिसअपॉइंटेड कस्टमर्स, और जब वो ऐसा करता है तो व्हेन एवर पॉसिबल दीज प्रॉब्लम्स शुड बी डील्ड विद इमीडिएटली एंड पर्सनली। तो याद रखिएगा इसमें पर्सनली आपने जो है वो इन्वॉल्व होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी का वो पर्सनली इन्वॉल्व होता है, और प्रॉब्लम्स को जो है वो फ़ौरन डील किया जाता है, डिले नहीं किया जाता है। इसके सिंपल एग्जांपल्स आप अपनी सेलुलर सिम की कंपनीज के जो जरिए भी ले सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल, या आप इंटरनेट एक्टिविटी के लिहाज से भी आप लाइक फॉर एग्जांपल आपने अगर आपने केबल इंटरनेट लगवाया हुआ है या इंटरनेट या आपने टीवी केबल भी लगवाई हुई है, तो लेट्स सपोज अगर वो काम नहीं ठीक कर रही, जैसा कि आजकल वेदर की कंडीशन भी है अपेरेंटली, तो आप फ़ौरन कंप्लेन करते हैं इन अ वर्बल वे, तो उस पर फ़ौरन रिएक्ट आता है और वो बताते हैं कि जी आपका काम जो है या आपकी जो प्रॉब्लम है वो इतने वक्त के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगी। और इन केस इफ दे डिले इट, ऑफ कोर्स इट एक्चुअली डिसअपॉइंट द कस्टमर, और वो कस्टमर जो है वो स्लिप आउट कर जाता है उस पर्टिकुलर कंपनी से। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि कस्टमर वेस्ट ना हो जाए, वो कहीं आपको छोड़ ना दे, फ़ौरन क्विकली इमीडिएटली रिएक्ट किया जाए। और इसके साथ कहता है कि कॉल और ईमेल द इंडिविजुअल इमीडिएटली। इसमें क्या कर सकते हैं आप, फ़ोन कर सकते हैं, डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करते वक्त फिर से हम वही स्ट्रैटेजी राइटिंग प्लान को मद्देनजर रखेंगे। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम एंड अपोलोजाइज, मसले को बयान करें, जो भी वजह थी, लाइक फॉर एग्जांपल इंटरनेट केबल नहीं आ रही वेदर प्रॉब्लम की वजह से, तो फ़ौरन ही उसे कॉल करके या आप उसको रिटर्न ईमेल करके बताएं कि जनाब ये इशू है कि बारिश की वजह से जो वेट कंडीशन है जिसकी वजह से हम अपनी वर्किंग जो है जो लाइंस पर वर्किंग है वो इतनी जल्दी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेन वाई द प्रॉब्लम अकर्ड, वजह बता दी जाए, वाई व्हाट दे आर डूइंग टू रिजॉल्व इट, और बताया जाए कि वो क्या कर रहे हैं, इस वक्त सोए नहीं हुए बल्कि कस्टमर केयर के लिए ही काम कर रहे हैं। फिर है प्रमोट गुडविल बाय फॉलोइंग विद अ प्रिंट मैसेज, और उनको एक अच्छा सा मैसेज भेजा जाए ताकि कस्टमर जो है वो आपका पॉजिटिवली आपकी तरफ से आने वाले मैसेज को खैर मकदम करे और उस पर वो सेटिस्फाइड भी रहे। रिस्पॉन्डिंग टू अ नेगेटिव पोस्ट एंड रिव्यू ऑनलाइन, अगर इसी तरह से नेगेटिव पोस्ट जब आती हैं ऑनलाइन मीन टू से सोशल मीडिया पर, सोशल नेटवर्क पर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, उसके लिए सबसे पहले पीपल लाइक टू डिलीवर देयर कंप्लेंट टू सोशल नेटवर्क साइट्स रादर टू कॉल कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट। होता क्यों है ऐसा होता इसलिए है कि लोग बजाय वो पर्टिकुलर सर्विस डिपार्टमेंट को कॉल करने की बजाय वो अपना गुस्सा, अपना एंगर, अपना एग्रेशन जो है वो सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर वो निकाल रहे होते हैं मुख्तलिफ पोस्ट को प्रेजेंट करके। और वो समटाइम ऐसा भी होता है कि नेगेटिव पोस्ट किसी पर्टिकुलर कंपनी के एनिमीज़ की जानिब से, उनके ओपोजिशंस की जानिब से निकाली जाती है, जो नेगेटिव न्यूज़ होती है और वो फेक न्यूज़ होती है, और वो कंपनी की प्रेस्टीज को जो है वो डिस्टर्ब करने के लिए बेसिकली स्प्रेड आउट की जाती है ताकि दूसरी जो राइवल कंपनीज हैं वो उससे एडवांटेज उठा सकें। सो बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंपनी, और उससे आपकी जो आईटी डिपार्टमेंट है मस्ट बी अलर्ट अबाउट दीज फेक न्यूज़ ताकि उसको प्रॉपरली जो है वो सोशल मीडिया पर उसको काउंटर किया जा सके। टुडेज कस्टमर आर क्विकली टू वॉइस देयर डिस्प्लेयर विद अ नेगेटिव। द नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि टुडेज कस्टमर्स आर क्विकली टू वॉइस देयर displayer with a negative post and social media. Let's see what experts say about these situations. So responding to the negative post and review online,
इसको किस तरह से देखते हैं? वेरीफाई द सिचुएशन, जैसे मैंने पहले बता दिया, वेरीफाई द सिचुएशन यानी कि इन्वेस्टिगेट करें कि टू व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ है, क्या वाकई ये रियलिटी है जो पोस्ट हमारे खिलाफ जो इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर सर्फ कर रही है, रियलिटी है या ये फेक न्यूज़ है, या राइवल कंपनी ने या राइवल एजेंसी ने आपके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया है, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि रिस्पॉन्ड क्विकली, जैसे मैंने पहले आपको बोल दिया कि रिस्पॉन्ड क्विकली, वेरी क्विकली और कंस्ट्रक्टिवली, ना कि अब्यूसिवली नहीं करना बल्कि कंस्ट्रक्टिवली काम करना है आपने। फिर उसके बाद आ जाए कंसिडर फ्रीबीज, अगर वो पोस्ट पॉजिटिव है, अगर वो पोस्ट रियलिटी बेस पर है तो फिर याद रखिएगा फ्रीबीज काम देगी आपको। फ्रीबीज मैंने जैसे पहले पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बयान कर दी थी कि फ्री बीज बेसिकली आपका वही कुछ फ्री गिफ्ट हैम्पर्स हैं, कुछ आपने कुछ ऐसी जो स्कीम्स वगैरह या कुछ ऐसे एडवांटेजेस जो होते हैं वो कंपनी की जानिब से डेवलप किए जाते हैं, वो प्रोवाइड कर देते हैं अपने उस रॉन्ग जो डूइंग होती है कंपनी की जानिब से, या जो मिस्टेक हुई होती है कंपनी की जानिब से जिससे किसी कस्टमर को डैमेज हुआ होता है, उस डैमेज को कवर करने के लिए बेसिकली वो फ्री बीज जो है वो की जाती है, जिसे सजेस्ट है रिफंड। फॉर एग्जांपल उसमें रिफंड भी हो सकता है, डिस्काउंट कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पर, और फ्यूचर सर्विसेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। इसमें ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। लर्न हाउ टू इम्प्रूव, बेहतरी कैसे की जा सकती है? डिनाइंग क्लेम्स। अच्छा जी, अब डिनाइंग क्लेम्स जो है ना, ये बड़ा इम्प्रूव करने का तरीका है कि मतलब लर्न करना चाहिए कि हाउ टू इम्प्रूव योर कंपनी वर्किंग एक्सेट्रा। उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स कम वेरी क्लियर टू एवरीवन, and also in there are some different ways to improve the company's working। लेकिन एक जगह ऐसी भी आ जाती है जहाँ पे आपको डिनाई करना पड़ता है क्लेम्स को, यानी कि रद्द करना पड़ता है कुछ क्लेम्स को। उसके लिए ख़ास किस्म की स्ट्रेटजी होती है, अप्लाई की जाती है। उसमें सबसे पहली बात तो यह कि यू मस्ट यूज़ अ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल जैसे हमने पहले आई थिंक आई सो चैप्टर नंबर 4 में शायद हमने, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट, बट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड सॉफ्ट स्किल्स जो है वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से जो अप्लाई किए जाते हैं, जिसमें जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है वो बड़ा ही जो एथिकली जो है वो डिस्कस करता है चीज़ों को, और इतने अच्छे अंदाज से डिनाई करता है कि वो डिनायल जो है वो डैमेज कंट्रोल कर रहा होता है बेसिकली, ठीक है। तो वो सम ऑफ द क्लेम्स, नॉट इन एवरी केस बट सम ऑफ द क्लेम्स कैन बी डिनाइड। मैनेजिंग बैड न्यूज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द टुडेज लेक्चर, कि बैड न्यूज को किस तरह से मैनेज करना है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, किसी भी बड़ी सी कंपनी के अंदर जो बैड न्यूज़ है उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। डिलीवरिंग बैड न्यूज़ इन अ पर्सन एक किसी पर्टिकुलर शख्स को जो है वो खबर देना, उसके लिए क्या सूरत हाल होती है, कैसी होती है कि व्हेन यू हैव द अनहैप्पी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग अ बैड न्यूज़, डिसाइड वेदर द नेगेटिव इन्फॉर्मेशन इज न्यूज़ वर्थी। फॉर एग्जाम्पल, ट्रिवियल नॉन क्रिमिनल मिस्टेक्स और वन टाइम बैड बिहेवियर आर बेस्ट लेफ्ट। रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, ये दो लाइनें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या? एक ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग बैड न्यूज़ जब आपके पास होती है तो उसमें आपने क्या करना होता है? नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, जिसमें ट्रिवियल सी कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कॉमन सी इन्फॉर्मेशन यानी कि मिस्टेक हो सकती है, सॉरी, और नॉन क्रिमिनल मिस्टेक्स है, वन टाइम बैड बिहेवियर हो सकता है, इसको आप जो है वो लेफ्ट आउट कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। इस तरह की बैड न्यूज़ को कंपनी की जानिब से जो है वो इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टली सिंगल पर्सन को जो है वो नहीं अलाउ कहा जाता। लेकिन however fraudulent travel claims, consistent hostile behavior और failing projects must be reported। ये तीन चीज़ें जो उसने बयान की हैं कि fraudulent travel claims के गलत तरीके से अपने क्लेम्स को जो है वो अपने आप जो पैसे बनाने का गलत तरीका उसको अगर वो यूज़ कर रहा है, और कंसिस्टेंट हॉस्टाइल बिहेवियर है, बड़ा गज़बनाक सा बिहेवियर है उसको, और फिर या वो अपने प्रोजेक्ट को जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली थिंग्स मस्ट बी रिपोर्टेड टू द पर्टिकुलर पर्सन। हियर आर पॉइंटर्स ऑन हाउ टू डू सो टैक्टफुली, प्रोफेशनली एंड सेफली। कुछ ये पॉइंटर्स हैं, कुछ पॉइंट्स चीज़ें हैं जिनको अगर देखा जाए, इनको मद्देनज़र रखा जाए किसी सिंगल पर्सन को विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आप जो है वो
एक अच्छे तरीके से एक शख्स को जो है वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1 क्या कि गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कूल डाउन एंड हैव ऑल द फैक्ट्स बिफोर मार्चिंग इन ऑन द बॉस और कन्फ्रंटिंग समवन। अगर आप बॉस के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, या अगर आप रेलिवेंट मतलब HR डिपार्टमेंट के किसी हायर डिपार्टमेंट के साथ किसी सेक्रेटरी लेवल के, या आप कह सकते हैं कि किसी डायरेक्टर लेवल के लोग के साथ बात करने जा रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली कि आपको अपने पास एक तो आपको बड़ा कूल डाउन होकर जाना पड़ेगा, दूसरा आपको फैक्ट्स जो है वो अपने पास रखने पड़ेंगे। रिमेंबर दैट एवरी स्टोरी हैज़ 2 साइड्स। तो आपने ये भी याद रखना है कि हर चीज़ के 2 ही साइड्स हैं, हर कॉइन्स के 2 साइड्स होते हैं। तो अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। फिर प्रिपेयर एंड रिहर्स, जाने से पहले उस तमाम अपना डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रेडी कर लें, रिहर्स कर लें एक दफ़ा। आउटलाइन विद योर प्लान टू से तो what to say that you are confident, coherent and dispassionate। आप बहुत ज़्यादा जज्बाती ना हो, आपकी coherent हो, यानी कि आप लॉजिकली सीक्वेंस में आपके मामलात हों, जो इन्फॉर्मेशन है वो हो, और फिर कॉन्फिडेंट भी डेफिनेटली आपको होना है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में कैसा चल रहा है, और फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेशन थी वो कैसी होनी चाहिए उसको भी एक्सप्लेन करना है। फिर देन आपने कंसिडर टेकिंग अ पार्टनर, अगर हो सके तो कोई पार्टनर जो है उसको भी साथ ले सकें, दैट टेक हेल्प फ्रॉम अ पर्सन लाइक ऑडिटर, इंस्पेक्टर एट्सेट्रा। देन बी पेशेंट विद द रिएक्शन, और अगर से बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन आता है तो डेफिनेटली मस्ट बी पेशेंट। एंड देन थिंक अबाउट द टाइमिंग, कि आपने जब जाना है इस काम के लिए तो टाइमिंग आपकी बेहतर होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि बंदा ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है या बिजी है तो आप उसमें उसके साथ जो है वो ये चीज़ें इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है अनाउंसिंग बैड न्यूज़ टू एम्प्लॉयज़ एंड द पब्लिक। एम्प्लॉयज़ के लिए और पब्लिक के लिए बैड न्यूज़ की अनाउंसमेंट जो है वो उसको किस तरह से करना है, वो उसके लिए भी कुछ प्लानिंग भी है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। मैनी ऑफ द टेक्निक्स आर यूज टू कम्युनिकेट बैड न्यूज़ इन अ पर्सनस आर यूज़फुल व्हेन ऑर्गेनाइजेशन फेसेस क्राइसिस। ख़ास तौर पे जब ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी या कोई जिस जगह आप काम कर रहे हैं वो क्राइसिस में है, तो फिर नेगेटिव न्यूज़ को वो किस तरह से आपने जो है वो हैंडल करना है। कीपिंग कम्युनिकेशन ओपन एंड ऑनेस्ट, उसके लिए सबसे पहली पॉइंट ये है कि आपने झूठ का सहारा नहीं लेना। बी ऑनेस्ट एंड कम्युनिकेट एंड ओपन टू एवरीवन, ताकि जो है वो नेगेटिविटी ना और फैले मज़ीद, क्योंकि जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो हैज़र्ड होगी और वो हाइड होगी तो वो डेफिनेटली कंपनी की जो नेगेटिव स्टेटस है उसको ज़्यादा उभारेगी। स्मार्ट कंपनीज इन क्राइसिस prefer to communicate the news openly to employees and other stakeholders. Let's see the writing plan for a negative news। तो इसमें भी writing plan को एक दफ़ा देख लेते हैं। इसमें भी सेम writing plan है, इसमें कोई बहुत बड़ा change नहीं है। Once again, buffer है, reasons है, bad news है, and then closing है। As I already discussed in a very detail this plan earlier in this video. Okay, so let's see another point. Announcing bad news to the employees and the public. The second thing, चूजिंग द बेस्ट कम्युनिकेशन चैनल। जब आपने बैड न्यूज़ राइटिंग कर ली तो उसको चैनल कौन से में से आपने जो है वो कौन सा चैनल यूज़ करना है उसको। मोरल कैन बी डिस्ट्रॉयड व्हेन एम्प्लॉयज़ लर्न ऑफ मेजर इवेंट्स अफेक्टिंग देयर जॉब्स। डेफिनेटली जब किसी जॉब से बंदे को निकाला जा रहा होता है, चाहे उसके पीछे कोई भी वजह हो, तो डेफिनेटली दे मोरली डाउन एंड डाउन हार्टेड ऑल्सो। और उसके लिए जो है वो बेहतर तो ये होता है कि पॉजिटिवली उसको जो है वो पार्डन ऑफ करके जो है पार्डन करके उसको सी ऑफ किया जाए, लेकिन डिपेंड ऑन सिचुएशन। देन ड्राफ्ट ऑफ इंटरनेट पोस्ट बना दी जाती है। नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी टू पब्लिश नेगेटिव न्यूज़ ऑन अ सोशल मीडिया। ये ज़रूरी नहीं होता कि सोशल मीडिया पर आप अपनी नेगेटिव न्यूज़ जो है वो पब्लिश करें, विच में क्रिएट मोर नेगेटिव र्यूमर्स एट्सेट्रा, जिससे और ज़्यादा नेगेटिव र्यूमर्स जो है वो कंपनी के बारे में डेवलप होते हैं। लेकिन इसको अगर आप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो देन देयर इज़ नो एनी हार्म। रिवीजन ऑफ इंटरनेट पोस्ट, जब इंटरनेट पोस्ट आ जाती हैं तो उसकी रिवीजन जो है वो ज़रूर कर लेनी चाहिए, उसको चेक कर लेना चाहिए पोस्ट को अपडेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, द रिवीजन ऑफ दिस बैड न्यूज़ मैसेज यूजेस द इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी एंड इम्प्रूव्स द टोन कंसिडरेबली। इसकी टोन जो है वो लहजे जो है वो बेहतर कर लेना चाहिए जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं। राइट, सो that is the last point of this chapter. So we successfully discussed 2 major points,
as I discussed earlier, as I talked to you earlier, that the point was the objective was point or objective you can say was effective techniques in refusing typical request claims, as well as handling customers bad news in print and online media, as I discussed it, and then describing apply effective techniques for developing negative news within an organization, right? So thank you very much for listen, learn and watch. Allah Hafiz.